Hi Anisha, can you hear me now? Can you just reply and confirm me that can you hear me now? Okay, okay. Thank you so much for informing me. Okay, welcome to Virtual Institute of Design, and I am Preeti Bansal, CEO of Virtual Institute of Design, an interior designer and a lecturer. Today, we'll be talking with an interesting person, that is Neeta Jain, honors at Harmannat Interiors. ओके आज हम लोग बात करेंगे किचन के डिज़ाइनिंग के बारे में डिटेल में. शी इज़ एन एक्सपर्ट विद दैट टू and soon she'll be joining us. Hi Unnati. Yes, you know that. Okay, let me give you some brief about Virtual Institute of Design. We are offering two courses, that is interior designing and fashion designing. You can do diploma and degree both from this from the institute, and you can have a visit to the institute from 11 to 5 at Yogi Chowk Varacha. So hope I'll see you soon. Yeah, soon Neeta Jain will be joining us. She's an interior designer with she has done so many projects. In fact, she is from different background of education, and then she had finalized to do her profession in interior designing. So we are just waiting for her call, as she'll I hope she's trying to send the request, and soon she'll be joining us. You can ask me any questions related to interior designing or any residential or any commercial project, any doubts related to that we'll be answering you. So be ready with your questions. Soon we'll be starting with an interesting session today. Yeah, Anisha, if you have any question you can ask. Hi Abhishek. Okay, so Virtual Institute of Design is basically we are the first who are bringing virtual reality and augmented reality into studies. So you can visit. We will be giving you elaborated. Hi Mayur sir, Mayur Mehta is there with us. Okay, hope you're doing well sir. So we are just waiting for Neeta Jain to join us. As she'll be joining, we'll be discussing over so many topics soon. Yeah, I was talking about virtual reality and augmented reality, that we are the first to bring. Very good sir. So we are the first to bring that concept in Surat. It is very important these days, I find it. So you all can visit and you can take detailed introduction related to that. Yes sir. Actually, I'm not getting you. What do you mean by that? Yeah, Neeta Jain. She'll be there soon. Hi Hardik. Okay, so everyone can keep their questions ready. Whatever they want to ask to her, we'll be talking about kitchen areas. What all are the important points related to that? Why it is an important uh, area to design crucially. Everything, every questions will be answered soon. So hope she'll be there soon to join us. Till then you can ask anything related to Virtual Institute of Design. I'll be answering you for that.
Yeah, I had a talk with her. She'll be joining soon, and there is some little bit problem as she's not able to join. So she'll be joining soon. Till then, we can talk over many topics. Hi, Neeta. Okay, she's there. Yeah, she is there. Okay. Hello. Hi. Hi. I was just talking about you that we'll be soon talking to Neeta Jain Okay. on Asset Can you Hermanat hear Design. me? Yeah, yeah, we can hear you. Okay. Okay. Can you Yeah. hear me? Yeah, I'm also hearing you. Say. Okay. So I was just informing them that we'll be talking to Neeta Jain soon and we'll be having a good discussion over kitchen areas today in detail. Okay. So Yeah, can you sure. just tell me about yourself to our audience? Okay. I'm Anita Jain, as you introduced me already. I'm founder and owner of Harmanat Interiors. Okay. It's a since 5 years I've started this firm. Okay. And it's a good journey. Say I can say कि so many obstacles and after that I have get this success. So it's Yeah. going good. Yeah, मैं उन्हें बता ही रही थी कि she is from many different backgrounds and then she decided for interior designing. So can you just Interior. elaborate what all things? I think Yeah. you were BA with English literature and also can you Yeah. just elaborate how come you decided Yeah. कि you see into an interior designing firm? या देख बोलते हैं ना कि एक लड़की का सफर जो होता है थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है एज कम्पेयर टू मैन। सो मेरा भी वैसा ही रहा है। मेरी कॉलेज स्कूल्स कंप्लीट हुई उसके बाद पापा ने बोला कि आपको मेरा मन था बीकॉम करने का या बीबीए करने का। सो पापा सेड दैट यू वुड ऑप्ट फॉर बीसीए। सो आई ऑप्ट फॉर बीसीए। आफ्टर दैट बीसीए के बाद हमारी जो स्ट्रीम थी एमए। सो वो थी एमसीए तो वो थी नहीं तो एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। After that completing my master degree, I thought what should I do next. So I competed for UPSC in है ना, and after that I got married, and after that it was also coincidence that I am being an interior designer. um, I got मतलब मैं किसी और का एडमिशन कराने गई थी शादी के जस्ट बाद। सो माय हस्बैंड आस्क्ड मी नीता तुम भी कुछ करना चाहती हो तो। सो आई थॉट कि बाद में कुछ करना है। सो अभी कुछ किया जाए। सो आई ऑप्टेड फॉर इंटीरियर डिजाइनर एंड इट Uh, वाज सच अ गुड डिसीजन फॉर मी। okay, या so you know the importance of education in interiors. या Yeah, so can एक्चुअली you just एजुकेशन। हाँ एजुकेशन हर एक जगह पर इम्पोर्टेंस है। मीन्स बोलते हैं ना कि कुछ चीज जो लौट के भी अगर आपको कुछ वापस दे सकती है तो वो है एजुकेशन। वो कभी भी खराब नहीं जाती और जितना अपन बांटते हैं उतना ही अपने को वो वापस मिलती है। आई थिंक सो। या sharing we share then we increase our knowledge like it is a या it is a saying. यस यस Can you just tell me your experience when you visited as a guest at Virtual Institute of Design? What was your experience with that? या फर्स्टली आई वाज सो एक्साइटेड दैट आप लोगों ने बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट ओपन की है वो भी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एआर एंड वीआर। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे देखना है कि कैसा है क्योंकि हमारे टाइम पर ये सब नहीं था। सो जब मैंने गई तो प्रीमाइसेस इतनी सुंदर बहुत। आई वाज आई केम एंड इट वाज अ वेलकम डे grand inauguration. So I was so excited, huh? Then I saw कि बहुत सुंदर premises and आई थिंक कि जितने लोग होते हैं उनका सबका फर्स्ट विजुअलाइजेशन तो तुम्हारे एंट्रेंस पर है ही। सेकेंडली वो जो सब बड़े आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स की उसमें फोटोग्राफ्स है तो सबका पहला ड्रीम यही होता था कि वहां पे एक दिन मेरी भी फोटो हो। सो आई ऑल्सो इमेजिन माई फोटो देयर। एंड Yeah, मुझे वो ग्लास के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे लगे जो आप लोगों ने उसमें फिल्म लगवाए हैं वो भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट कलर्स यूज किया आपने अपने इंस्टीट्यूट पर। एंड द मोस्ट थिंग दैट द हेडसेट in which a student can visualize everything lively
मीन्स अभी जैसे हमको कुछ प्लान करना है तो वो एक ड्राफ्टिंग में या ऑटो कैड्स पर इस पर करना पड़ता है, इवन 3D, ठीक है। बट जब हम अगर उसको लाइवली डिजाइन कर रहे हैं, मीन्स हम मैंने खुद यूज किया था वो डिवाइस, तो आई वॉज कि मैं सोफा को इधर रखना चाह रही हूँ, फिर टीवी यूनिट को मैं इधर आगे खसका पा रही हूँ, सोफा और टीवी के बीच का डिस्टेंस मैं मेंटेन कर पा रही You हूँ। took तो that वो सब demo. चीजें, yeah, I took that demo and it was superb, huh? Very nice. Means Okay. imagination, like a game and a creativity. Both was a combination. Means अगर किसी को बोरिंग भी नहीं लगेगा कि आप खुद प्लेस करें उसमें, एंड दैट डेमो पर्सन टोल्ड मी कि इसमें बहुत सारी वेराइटीज, आई जस्ट ओनली वन, बट बहुत सारा उसमें है उन्होंने बोला, तो अपने सब टाइप ऑफ वो यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत Yeah, बहुत even अच्छा like कॉन्सेप्ट, एंड दैट ग्रीन रूम ऑल्सो, हाँ, दैट yes, ग्रीन रूम इज discussion. ऑल्सो सो नाइस। Yes, artificial grass. या Okay, Nita, as I was telling them, you did so many projects in Surat. So, can you just या tell me your journey as an interior designer in Surat ओके till now? ओके Okay, Surat was a very new for me because I belong to Chhattisgarh, and after marriage I came first time in Surat, है ना। So as I told कि शादी के जस्ट तुरंत बाद ही मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते करते एक मैरिज लाइफ को एंजॉय करना प्लस स्टडीज, एंड उसके बाद उनके जो वर्क्स मिलते थे, वर्कशीट्स मिलती थी, एंड सेकेंडली मैं मेरे साथ एक मेरी कजिन, मतलब मेरी इन लॉ की सिस्टर इन लॉ की बेटी भी जाती थी। तो उन दोनों का टाइम भी थोड़ा, हम दोनों का, वो फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग, तो थोड़ा टाइम मेरे को उसके लिए वेट करना पड़ता था। तो आई थॉट कि मेरे पास बहुत प्रीसियस टाइम मुझे मिला है इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का, सो मैं उस वक्त वो लाइब्रेरी में इंजॉय करती थी, मीन्स मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करती थी, उस टाइम को भी मैं अच्छे से यूटिलाइज करती थी कि मैं जितना ज़्यादा गेन कर सकूँ उतना अच्छा। फिर मैंने 3D की क्लासेस की, बाहर से ही की, क्योंकि मेरे पास भी कम टाइम थे। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने फिर मेरी इंस्टीट्यूट कंप्लीट हुई, मैंने टॉप किया अपनी कॉलेज पर, फिर बेस्ट डिज़ाइन का मुझे अवार्ड भी मिला, एंड थैंक्स फॉर दैट टू अवर कॉलेज, है ना। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया, बिपिन सालिया आर्किटेक्ट एंड बिपिन दुदैया द फेमस इंटीरियर डिजाइनर, सो उनके अंडर भी मैंने इंटर्नशिप की। एंड उसके बाद मोस्ट एक्साइटिंग वाज माय जॉब, बिकॉज बिफोर मैरिज आई नेवर डिड जॉब, आई वाज अ होम टाउन गर्ल, है ना। So job was a very good experience for me, and my ma'am was so मतलब बहुत ही अच्छी, इतना इजीली एक्सप्लेन करती थी, खुशबू शाह अग्रवाल, एंड शी वाज सो चार्मिंग। मीन्स उनकी जो डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट थे बहुत ही डिफरेंट, एंड बहुत फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ सूरत की। ये मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरी सबसे जो जर्नी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो आई डिलीवर्ड माई बेबी एट ड्यूरिंग माई दिस जर्नी, है ना। सो एक लड़की के लिए बेबी भी डिलीवर करना, तो फर्स्टली इट वाज समवट कि अब छोड़ दीजिए आप, एंड बेबी भी देखना है, बट फैमिली वाज सो सपोर्टिव, एंड माय हस्बैंड, डियर हस्बैंड हरमन जैन, ही वाज आल्सो सो सपोर्टिव कि नहीं, तुझे ड्रॉप नहीं करना है, तू कर, जितनी होती उतना कर। तो सो ही उस टाइम मेरी 6 से 7 साइट्स चल रही थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। सो I didn't break the chain, and I continued until 7 months. I did my, then after delivering, after 3 months, I again started. I was back to work. If I would left the work, then I would be, समझ रहे हो ना, कि मैं वहां से निकल चुकी रहती। Means उस फील्ड में बार बार आना जाना, ये अपनी फील्ड का वो नहीं है कि आपने कभी भी मन चाहा रोक दिया, फिर कभी स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू कंप्लीट, अपने को जाना ही, कंटिन्यू रनिंग सक्सेस में रहना है बस, As एंड देन okay, so साइड बाय साइड। okay, I'll be Yes. continuing your question with that only. Okay, you told Bipin Dudhia say you did. So he is our next guest. As I'm just Okay. informing you that he was our next Wow. guest. Week he'll be there with us. Yes, And Bipin sir as you say, told me about your Bipin, internship, yes. Hmm. so yeah, you were telling something. Now you say. Okay. I So was just I was telling saying that. about Bipin Dudaiya sir. He is a very knowledgeable person, and it was my very nice decision to have a internship with him, because हम डेली साइट पर जाते थे, अलग अलग साइट पे, उनकी काफी साइट्स चल रही थी।
सो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ मुझे इंस्टेंटली प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत अच्छा मिल गया। मीन्स सर वहाँ पे जाके जो मतलब जो दरवाजों पे बैंडिंग्स कैसे आती है, अपन कितने हाइट का, वो सब सर प्रैक्टिकली जब मुझे एक्सप्लेन करते थे, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विथ हिम। Yeah, he's famous for his Sunday schools also. So, what you think? How internship is equally important before entering into the market? Yeah, internship is very important because from institute we get theoretical knowledge and practical also, but little bit, है ना? So for practical knowledge, जब तक हमें एक साइट की नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होगी, साइट पर अपन लेबर्स कैसे हैंडल करते हैं, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करते हैं, we can't go for our own site. So in internship they send us for site visit also, for drawings also, and detailed drawings. Detailed drawing is very much important for any जितनी अपनी ड्राइंग्स पर डिटेलिंग रहेगी, अपने को उतनी साइट में परेशानी नहीं होगी। मीन्स किसी को भी अपने को बार बार परेशान नहीं कर, मतलब कोई पूछेगा नहीं हमसे और बार बार हमको परेशान नहीं होगा, सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा। Okay, so very well said, Anita. As I could see how many students also are, having our session. They are attending our session. So please observe these questions, these answers, and any other ओके, questions you want to ask, you can ask Nita ma'am. Will answer that questions. So you can give श्योर, your you can ask any damn questions related to interior designing field right now. Okay, so we'll proceed further. As I was talking या, that today's specialty will be a kitchen. So first of यस, all, what do you find in residential and commercial designing? Can you start with that? ओके, यस। किचन किचन इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कोई भी जगह पर, क्योंकि पेट से ही जो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चाहे वो घर की लेडीज हो या जेंट्स हो, जब एक लेडीज को पीसफुल और अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है उस किचन पर काम करने के लिए, तो वो अच्छा पकाती है। तो जिस तरीके से अगर उसको अच्छे से एयर मिलेगा, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेंगे, तो वो उतना ही इजी फ्री करेगी अपने किचन पर वर्क करने के लिए। सो अभी जो ट्रेंड है मॉड्यूलर किचन का, वो काफी आया हुआ है। तो मॉड्यूलर किचन इज जस्ट अ, बहुत टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स को एक करना इज अ मॉड्यूलर किचन। सी इंडिया में पूरा फुल्ली मॉड्यूलर तो पॉसिबल नहीं है, बट सेमी मॉड्यूलर अपने बोल सकते हैं कि इंडिया में सेमी मॉड्यूलर किचन चलता है। ठीक है, सेमी मॉड्यूलर में ये है कि अगर आपने किचन को कहीं पे किया है, तो वो अपने 2 से 3 दिन में आप पहले अपने मेजरमेंट्स लेके जाते हैं, एंड 2 से 3 दिन में, मतलब उनके जब पूरे प्रोसेस होते हैं, तो आपकी साइट का जब पीरियड आएगा, तो वो रेडी करके उसको इंस्टॉल कर देते हैं। एंड जो नॉर्मल जो अपने किचन होते हैं, उस पर उन लोग अपने कारपेंटर से बनवाते हैं, फिर काउंटर टॉप्स और ये सब कुछ अपने आप से करते हैं। ठीक है, किचन पे मेन जो पॉइंट्स होती है, जो अपने को ध्यान देने जैसा होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स इसलिए मस्ट है क्योंकि किचन में अभी बहुत टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ अपन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जैसे हो गया अपना माइक्रोवेव ओवन, फिर कॉफी मेकर्स एंड Mixer दैट प्लेट, grinders. या हाँ, ग्राइंडर्स हो गए, फिर मिक्सर्स हो गए। सो वेराइटीज ऑफ आइटम्स हो गए अभी अपन यूज कर रहे हैं किचन पर। तो पहले अपने क्लाइंट से डिस्कशन करना, एंड जो बेसिक उनको जो रिक्वायरमेंट्स है उतनी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स तो देना ही देना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ओवरलोडेड पॉइंट्स दे दें, बट जो रेफ्रिजरेटर हो गए, सबके पॉइंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर प्रॉपर प्लम्बिंग बहुत जरूरी है। प्लम्बिंग इसलिए जरूरी है कि अगर अभी इनिशियल स्टेज पर अगर प्लम्बिंग प्रॉपरली किचन पर नहीं करी गई, तो बाद में वो जो पड़ोसी अपने अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो अपने खराब पड़ोसी हो जाते हैं। राइट, सो प्रॉपर बिल्कुल प्लम्बिंग बहुत जरूरी है। यस, अभी जैसे बहुत सी चीजों में हॉट वाटर्स बहुत जरूरी हो गए, कोल्ड वाटर जरूरी हो गए, डिश वॉशर्स के लिए भी एक लाइन्स की बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने के लिए, कि अभी जो न्यू इनोवेटिव आइटम्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी वो प्लान करें। उसके अलावा जैसे अगर अपन सिंक प्लान कर रहे हैं, तो सिंक बहुत कॉर्नर्स में नहीं हो, क्योंकि अगर फिर वो एल्बो टच करेगा, तो इससे छोटी छोटी जो चीजें होती है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किचन के जो टाइप्स होते हैं, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स किचन के डिजाइन हो गए हैं। तो अपने जैसे अलाइन किचन हो गया, अलाइन विथ पैरेलल किचन हो गया, यू शेप या हॉर्स शेप को अपन किचन बोल सकते हैं। उसके बाद अपने आइलैंड किचन हो गया। राइट,
बहुत टाइप्स ऑफ किचन होते हैं। इस पे भी हमें कैसा ध्यान रहना रहता है कि हमें एक वर्किंग ट्राइंगल मेंटेन करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव एंड सिंक के होते हैं। ये जो तीन बहुत मेन चीज होती है जो हम लोगों को किचन पे यूज करनी होती है। तो इसमें कैसा होता है कि एक ट्राइंगल बनना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से टकराव नहीं हो। तो अगर कोई रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है और उसकी जस्ट मान लीजिए आइलैंड किचन है तो वहां पे फ्रीजर कुछ रखा हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे से कोलाज होंगे, ठीक है, कोलेज होंगे। तो वो चीजों को हमें ध्यान रखते हुए एक वर्किंग ट्राइंगल पर बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए। और फिर किचन में 5 टाइप के अलग अलग एरियाज होते हैं, ठीक है। ये हर एरिया हर किचन में होता है, बट अपन उसको किस तरीके से सेटल कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कंज्यूमेबल एरिया हो गया, फिर इनकंज्यूमेबल एरिया हो गया, फिर प्रिपरेशन जोन, कुकिंग जोन एंड फिर क्लीनिंग जोन। तो सबसे पहले अपन आते हैं कंज्यूमेबल एरिया। कंज्यूमेबल एरिया में होता है जैसे स्टोरेज हो गए, जो अपन कुछ टाइम के लिए कोई राशन लेके आते हैं, टोमेटो सॉस, ये सब जो अपने स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकंज्यूमेबल में अपना आ गया जैसे अपनी क्रॉकरीज हो गई। तो ऐसे लाइन वाइज अगर अपन प्रॉपर सेटअप करते हैं तो वो लेडीज को एक बहुत प्रॉपर, अगर वो किचन को यूज कर रही तो बहुत अच्छा है। तो ये एक इंटीरियर का बहुत अच्छा वो रहेगा जब वो प्रॉपरली उनको उनके हिसाब से भी और अपने हिसाब से उनको एक्सप्लेन करके वैसा डिजाइन करे। फिर इन नॉन कंज्यूमेबल के बाद आता है अपना सिंक जोन। सिंक जोन और कुकिंग जोन के बीच में जो गैपिंग होती है वो प्रिपरेशन जोन होती है। वो एटलीस्ट और 30 इंच का गैप उनमें होना चाहिए ताकि दोनों में से जो भी उसको यूज कर रहा हो तो वैसा गैपिंग। इस बीच अगर आपको कुछ पूछना होता है। नहीं 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 नहीं, इट्स मेन जो एवरीवन इज होता है ना किचन पर वो होता है वास्तु। वास्तु काफी लोग मानते हैं, बट मेरी जो राय है ना कि सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूछ लिया जाए कि आप वास्तु मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर कोई वास्तु पे नहीं पड़ता है तो अपने उनको जबरदस्ती की राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी का ऑलरेडी अगर बिल्ट अप घर है तो वो उनका फिर दिमाग घूमता रहता है कि मुझे ये नहीं कराना था या क्यों करा दिया, इस टाइप का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लाइंट को ये पूछ लेते हैं आप वास्तु प्रिफर करते हैं या नहीं। एंड बेसिक वास्तु जो रहता है वो तो हम उसके हिसाब से ही प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो तो मस्ट होता है, ठीक है। बाद में कैन यू अगर जस्ट पॉइंट आउट फ्रॉम रिनोवेशन हो। Vastu point जी, related to आपकी our आवाज center? नहीं आ रही है। Yeah. Can you hear me? Can you hear me? कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Can you hear me? आई कांट हियर यू। Uh, हेलो। please reply हेलो। now. Can you hear me? या। Yeah? हेलो। Yeah, can you hear me? नो, आई कांट हियर यू। Yeah, actually, I don't know what is happening due to network issue or what. आई कांट हियर यू, सॉरी। Yeah, just a minute. Can you hear me now? कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, I can hear you. एक्चुअली आई एम नॉट Can you गेटिंग hear योर me? वॉइस। Still you not getting my voice? वेट अ व्हाइल, वेट। या, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Abhishek, आई can you थिंक, hear me? या, आई एम हियरिंग यू नाउ, इट्स ओके। Okay. Okay, I या, don't know what is happening with the network. आई I थिंक think it या, happens. Actually, it happens now. I am habituated to it. Sometimes, we are the circle is buffering again and again. Otherwise, the voice went out. So it's very natural because many people are going live due to this COVID. ओके। Okay, an interesting question I'll be asking you in the end now, that what did you did in your lockdown, as we started with our things. So I'll be asking you your journey with your lockdown. I was just ओके। asking you that can you just elaborate what all Vastu, basic Vastu points you keep in mind while ओके। designing our centers? या, देखिए, वास्तु जो होता है ना वो एक पहले एक प्रॉपर प्लॉट का होता है। प्लॉट के बाद एक घर का होता है, इवन एक इंसान का भी वास्तु होता है, बट अपने उतनी डीपली नहीं जाते हैं। सो प्लॉट का, फिर घर का, फिर घर के अंदर में भी एक किचन का भी वास्तु होता है, ठीक है।
सो जब अपन घर के वास्तु के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो जो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो किचन के लिए बेस्ट होता है। फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए सेकेंडरी होता है नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो Yeah. जो साउथ ईस्ट में घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो बोलते हैं अग्नि कोना। सो वो वहां पर जो किचन में खाना पकता है अग्नि होती है, इसलिए उसको अग्नि कोना बोलते हैं। इसी तरीके से जो अपना गैस सिस्टम होता है वो ईस्ट की तरफ फेसिंग करते हुए ही खाना बनाना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, क्योंकि आजकल जेंट्स लोग भी लॉकडाउन में काफी अच्छे एक्सपर्ट हो गए हैं। राइट। उसके बाद अपना जो पानी का टैंक होता है, मीन्स सिंक हो गया या फिर आरओज हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट की कॉर्नर में होता है, जो ईशान कोण होता है। राइट। इस तरीके से अपना जो बेसिक वास्तु है ये सेटल्ड होता है। फिर जो साउथ Yeah. वेस्ट वाला जो पार्ट होता है, साउथ वेस्ट में अपने जो हैवी स्टोरेज हो गया, तो ये सब चीजें अपन साउथ वेस्ट में रखते हैं। फिर जैसे ओवंस हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, ये सब चीजें अपन वापस साउथ ईस्ट में रखते हैं। जो चीजें से इलेक्ट्रिक या फायर्स होते हैं, तो वो सब चीजें अपन साउथ ईस्ट पर रखते हैं। ये बहुत बेसिक Yeah. चीज है, बाकी सब कुछ चलता है। बाकी डाइनिंग्स हो गए वो वेस्ट पर। दैट्स वो तो फिर डीपली जाना चाहेंगे तो इट्स मेनी मोर आई नो, बट दिस इज मैनी अ मोर, मेन हाँ, बेसिक. या बेसिक ये दिस सब। इज basic. So have you ever, can you just share your life experience with while designing kitchen with your clients or anything? Any interesting, कोई ओके, किस्सा ऐसा हुआ हो जो आपको याद है कि हाँ यार ऐसा, यार मेरे साथ it ऐसा भी was हुआ या very interesting. My client wanted a white kitchen platform countertop, so I opted for nano white. है ना? It was a very bad experience. It was a good. After sometimes we can buff it. Okay, buffing करवा सकते हैं. But my client was so कि मुझे बिल्कुल भी scratches नहीं चाहिए. And we laminated over that nano white. बट या हल्दी वगैरह के भी दाग नहीं लगते हैं। बट हमने वो टेस्टिंग भी किया था छोटे से पीस पर। बट आफ्टर सम टाइम जब वहाँ पे कारपेंट मिस्त्री काम कर रहे थे, एजेंसीज काम कर रही थी, तो वहाँ पे बहुत लाइटली स्क्रैचेस आ गए थे। सो क्लाइंट वॉज एग्री कि चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर वाइफ वॉज कि नहीं, मुझे इतना सा भी स्क्रैच नहीं चाहिए। मीन्स मैंने सर आई सेड कि ठीक है, अभी दो एक बहुत लाइटली स्क्रैचेस थे, तो आई सेड कि 2-3 साल रुक जाइए, फिर आई विल मतलब अपने उसके ऊपर नियोलिक की शीट आती है, सो वी विल गो या फॉर दैट। इट्स सो एक्सपेंसिव इट इज। बट दे ऑप्टेड कि नहीं, मुझे फिर अभी आप चेंज कर दीजिए। सो वी क्योंकि जो नैनो वाइट होता है ना, उसमें नेत्र भी उड़ते हैं, तो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, तो फिर वो नेत्र भी उड़ रहे थे उसमें, तो वो भी नजर आ रहे थे। सो आई वॉज सो कि अरे यार, क्लाइंट का इतना पैसा खर्चा हो गया। बट दे सेड कि नो इश्यूज। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहीं प्लेटफॉर्म पे भी लगवाया था, आई अगेन आस्क देम कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो दे सेड कि नहीं, आई एम यूजिंग एंड आई एम सेटिस्फाइड। मतलब कोई क्लाइंट सेटिस्फाइड थे, तो वी गो वन फॉर इट। So it was a very bad experience. Means the client didn't said me anything for that, but he was so cooperative कि no, it's okay, but आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, वो मेरी वाइफ को इतने स्क्रैचेस भी नहीं चाहिए, इसलिए बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनो वाइट में जैसे काउंटर no, टॉप्स हो गए छोटे, this तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। something material is natural, na, we can't help it out. It's on our luck या also sometimes, because this kind of या फिर experience happened with me also at my side. Some stone may sometimes, they get stained or something, and at one side there are no stains at all. So it या depends इट on the कैन material मूव। also. हाँ, मीन्स वो चल सकता था आराम से, बट Yeah. दे वाज कि नो, चेंज इट। एंड आई सेड, आई So, एक्सप्लेन कि नो, लेट इट बी। बट दे सेड दे वाज ओके देन। आई सेड ओके देन। yeah. So while designing, what all points you kept in mind basically, well, when you start designing a kitchen, as you know, homemaker. या Can you just give a brief idea about a homemaker to our audience? देखिए, होम मेकर बोले तो जनरली घर की लेडीज हो गई, मॉम हो गई, फिर जो भी लेडीज है, जो भी Sorry, your network is not working, I guess. Yeah, actually, your network is not working. If you can just shift here and there for
the better network. So here we are going with an interesting discussion related to kitchen, a very crucial area and a very easy area also you can say, but a very crucial because a homemaker works whole day over there. Homemaker पूरा दिन उस एरिया में काम करती है and you know रहेंगे sometimes हम feel करते हैं okay. She'll soon join us again as I think there is some problem with the network. So no problem. I'll continue with this. So you know, okay. Sometimes हमारी मम्मी चिड़ी हुई होती है. So have you ever tried to find why she is not in a mood sometime? So what happens? Yeah, she's there with us again. Yeah. Okay, she's joining us soon. Yeah, it's okay. Yeah. So again, I told you that so many live shows goes now at this point. So network issues will be there. So I was just telling to the It's audience okay. that kitchen is an, yeah, I was just telling them that kitchen is a very easy area also you can say. देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है, right? A बहुत homemaker पूरा दिन, yes, जैसे अभी तो फिलहाल इंडिया में देखो तो a lady, a mother, a housewife who lives in a house whole day, she is working in the kitchen, right? Whole day. Sometimes मैं उन्हें वही बोल रही थी कि कभी कभार हमारी मम्मी चिड़चिड़ी होती है या वो लेडी जो उसमें पूरा दिन काम करती है, she is irritated sometime. तो have you ever tried to find why she is irritated? जरूरी नहीं है हर बार कोई मैटर ही कर रहा हो, लेकिन हमारे yes. डिस्कम्फर्ट्स भी हमें मेंटली हमें अफेक्ट करते हैं. तो कैन यू जस्ट एलाबोरेट ऑन दैट कि हाउ Affect कर. फिजिकल, यस, हाउ फिजिकल डिस्कम्फर्ट अफेक्ट्स आवर मेंटल अपीयरेंस. यस यस. सो बेसिकली जो होममेड्स होती है, जैसे अपनी मम्मी हो गई या फिर अपन खुद कुक करते हैं या फिर अपनी मेड हो गई, उनको जैसे मैंने बोला एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे किचन में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से खाना नहीं पकाई तो वो हमको खिलाएंगे और हम भी चिड़चिड़े रहेंगे, राइट? सो वो बहुत जरूरी है. यस, तो किचन में उनको हर एक चीज का प्रॉपर स्पेस उनको मिलना चाहिए. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 5 टाइप ऑफ एरिया अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एक स्टोरेज करने में इजी होती है. तो उसी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाती है रखने के लिए. सेम वे किचन के अलावा भी अगर अपन देखते हैं तो स्टोरेज होता है. तो ये स्टोरेज हो गया, किचन हो गया, ठीक है, हम अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है वो होता है कि हम उनकी भी सुने और अपनी करें. ठीक है, तो उनकी भी अपनी यस, राय बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको वो किचन यूज करना है, वो वर्डरोब यूज करना है. बहुत टाइम होता है कि हम ये देना चाहते हैं बट वो नहीं, आई एम ओके विद दैट. सो वी ऑल्सो से दैट या इट्स ओके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें कौन सा एक कंफर्ट जोन है. फिर क्या होता है कि इसमें जो अपने स्टैंडर्ड जो अपने हाइट्स होते हैं वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि जो बेसिक इंडिया की जो लेडीज होती हैं उनकी हाइट 5 फुट, अपन स्टैंडर्ड एक 5 फुट 5 फुट 2 ये माना जाता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से सारा प्लेटफॉर्म की साइज हो गई, फिर प्लेटफॉर्म का डीप हो गया, फिर जो अपनी ट्रॉलीज उनके हिसाब से अपन सेट करते हैं. तो इस टाइप से उनकी जो हर एक चीज है उनको अपने देख के ही वो स्पेस अगर प्रॉपर उनको दिया जाए तो वो अपने को बेटर रहेगा. ये या. तो तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है, कि एक विंडो जहाँ से प्रॉपर उनको एयर भी आ रही हो. देन प्रॉपर लाइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी लाइट्स का बहुत खेल चलता है. तो जब लाइट अगर गलत इफेक्ट पड़ गई तो वो खाने का मतलब लुक ही चेंज कर देगी. तो एक लाइटिंग भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. फिर वही प्लम्बिंग का, जैसा मैंने बोला कि उनको एक प्रॉपर प्लम्बिंग भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो किचन उनको यूज करना है, अगर वो उसमें रोज रोज प्रॉब्लम होगी तो वो इरिटेट हो जाने वाले हैं. yes. So I will just continue the same question with the anthropometric. How can you relate with the anthropometric? ओके. ergonomically designed, ergonomic designs हम बोलते हैं कि this house is ergonomically designed, or this cupboard is ergonomically designed, or this chair is ergonomically designed. So I या find personally that ergonomics, it plays an important role in our in our field, truly. यस So design with discomfort,
there is no point of designing anything if it gives discomfort, right? So comfort with Yes. design is called ergonomically design. So when ergonomics is there, anthropometric is there. So how can you are you first of all, my question is to you, are you noticing these points while you design your residential Yes. projects or commercial kitchens? Because you have done I know you have done bread liner ka one uh, cake liner or bread liner ka one unit. So Yeah. you must be knowing with the commercial kitchen also and residential kitchen also. Yeah, again I find there is some network issues. Okay, hi Manasvi. An interesting topic is going on, dear. So do listen to this session. This will help you a lot in your further projects. Okay, I think there is a network issue with her again. So I'll be continuing the same point that. So how you will think how it is important. Yes, it is important because if you think हमारी मम्मी की हाइट मान लो अभी मैम बोल रहे थे जैसे 5 है, 5 feet है, and आपका किचन above 38 जाता है, तो she has to keep under her foot something for standing up to to maintain a level to cook or to work over the stoves. So the anthropometric details of a homemaker is equally important for everything. As she said, different zones for overhead cabinets, for her storage. She is joining us again. I'll just accept her. Okay, for also for refrigerator units and sink. Yes, she talking about sink center. Yeah, I was just continuing our point with the audience that anthropometric is equally important. So you can just continue with the same thing. How you ओके। find it? या देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जैसे लेडीज की हाइट और वो सब कुछ मैटर करती है। सो अगर जैसे अपन फॉर एग्जांपल रोटी ही बना रहे हैं, तो जब अपने रोटी बनाते हैं तो उसको एक लेवल तक की हाइट चाहिए रहती है उसके हाथ को कंफर्ट होने के लिए। अगर उस लेवल से अगर उसका हाथ नीचे या ऊपर हो गया तो उसके हाथ में पेन होना चालू हो जाएगा। उसी तरीके से जब वो कंटिन्यू खड़े होके काम कर रही, तो हम नीचे एक पैड भी उसके देते हैं जो सॉफ्ट पैड होता है, तो उसकी Yes. फीट को एकदम कंफर्ट लेवल रहे। इस तरीके से हर कुछ होता है। जैसे अपन अपर कैबिनेट डिजाइन करते हैं, तो अपर कैबिनेट भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 24 to 27 इंचेस का जो गैपिंग होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। फिर जो नीचे का जैसे अपने 24 to 27 का डीप रखते हैं, तो ऊपर का वो अपने 12 to 15 या 15 तक का अपना डीप रखते हैं ताकि वो सिर ना टकराए। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो अपने को ध्यान रखते हुए करनी पड़ती है। एंड कभी कभी होता है कि 5 फुट 8 वाली भी लेडीज अपने को मिलती है। सो 5 फुट 5 वाली भी मिलती, 5 वाली भी मिलती, 5 फुट 2 वाली भी मिलती। तो वो डिपेंड करता है कि अपन कैसे वो क्लाइंट है और उनकी हाइट तो बहुत मेन वो रहती है। फिर सेकेंडली उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। Yes. True, very true. Requirements are obviously valuable because we have to work for them. So their requirements we have to keep in mind. Also, I would like to elaborate the kitchen topic with the crucial thing that ventilation, the lighting. Okay, Yeah. artificial lighting we can adjust. What about the Yeah. natural lighting you find? Like you are you like in that category? Like I find there should be Mm. a window in a kitchen Yeah. for natural Yeah. ventilation, for natural lighting, Obviously, because there should. Hmm. Yeah, you yeah. continue with your question first. So I was just that was my question. Do you first of all do you think there should be a window? Because these days I was again then asking you, okay, people are closing their windows and they are keeping chimneys. So can you just differentiate both the importance? Like even Okay. chimneys are equally important. We cannot say that Yes. chimneys are not important. They are equally Obviously. important. But can you just Yes. elaborate what is the importance of window as well as chimney in the kitchen? यस। Yeah. देखिए, विंडो का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि विंडो से अपने को एक नेचुरल सनलाइट मिलती है। ठीक है, अब लेडीज जो होती है वो उनका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो किचन पर ही रह जाता है। तो जो सनलाइट से अपने को डायरेक्टली सनलाइट तो मिल नहीं पाती किचन पर, जो मिलती है थोड़ी बहुत मिलती है, बट जो विटामिन डी का कुछ असर जो लेडीज को मिलता है वो मिलता है। एंड यू नो दैट कि इंडिया में जो लेडीज है वो मैक्सिमम टाइम किचन पर स्पेंड करती है। जैसा मैंने कहा पहले भी कि जैसे अपने को वेंटिलेशन, उसको एक नेचुरल एयर की भी जरूरत है। जैसे अपने डायरेक्ट फैन तो अपने लगा नहीं सकते हैं, तो वो हर टाइम तो रोटी नहीं बनाती रहेगी।
तो जो हवा के जो धुआं और ये सब का टेंशन रहता है, तो वो काफी टाइम तक अपना विंडो ओपन भी कर सकती है एंड प्रॉपर फैन भी ऑन कर सकती है, बट जो एक नेचुरल जो एयर मिलता है उससे, अभी जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अपन लॉकडाउन पे थे, तो अपने दिन भर घर में कैसे फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे ही अपन टेरेस पे गए या फिर बाहर गए तो अपने को एक नेचुरल फीलिंग आती है, सनलाइट अपने देखे तो एक अपने को नेचुरल फीलिंग आती है। उसी तरीके से Yeah. सनलाइट वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, मीन्स विंडोज बहुत जरूरी है। इन सेकेंड थिंग, चिमनी भी बहुत जरूरी हो गया है। चिमनी इसलिए जरूरी हो गया है कि जैसे आपने कुछ भी छौंका, ठीक है, तो वो धुआं को तुरंत वेंटिलेट कर देता है, बाहर कर देता है। तो चिमनी भी बहुत जरूरी है। तो आप ट्राई किए कि विंडो अगर कोई दूसरी साइड पर भी पॉसिबल है, वैसे तो जनरली अपने किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहता है, बट कहीं और भी पॉसिबल है तो वो भी अपने कर सकते हैं। और इवन Yeah. काफी जगह पर विंडो एंड चिमनी दोनों भी पॉसिबल है। एंड अभी काफी अच्छे से कर्टेन्स आ गए हैं जो अपने किचन पर यूज कर सकते हैं। तो विंडो खराब और वो वॉशेबल होते हैं, इवन आप उसको झटका करके भी क्लीन कर सकते हैं, तो पॉसिबल है सब कुछ। Yeah. फ्री माइंड Okay. रहेगा। Yeah, when you were talking about the different types of kitchen designs like L shape, U shape, island, and everything. So you had one word work triangle. So importance of work triangle, can you tell? Because I also find work triangle is very important. So in what way it is important? Can you just elaborate it? See, first work triangle is very much important when there are 3 to 4 persons working on the kitchen, right? Yes. Uh, they don't merge or they don't collage with each other. So working triangle is very much easy. And secondly, it is a very handy free, means अगर आप कुछ किचन पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर ये ट्राइंगल जैसा होता है, ट्राइंगल से तो वर्क से स्टूडेंट्स को समझ में आ ही गया होगा। तो उस तरीके से क्या होता है कि तीनों का जो स्पेसेस होता है दोनों का, तो उन तीनों के स्पेसेस में डिफरेंस हो जाता है। अगर अपन फॉर एग्जाम्पल कुकिंग जोन एंड सिंक को अगर अपने आजू बाजू रख लेते हैं, तो अगर हमने कुकिंग कुछ कुक किया, कुकर कुकर या फिर कुछ अपने को उतारना है, तो वो हम कहाँ उतारेंगे, तो उनके बीच का जो गैपिंग होता है, ट्रायंगल बहुत तरीके से हर एक अलग अलग किचन्स में अलग अलग टाइप से फॉर्म होता है। तो हैंडी फ्री भी होता है, वो एक वर्किंग स्पेस देता है। फिर अपने को किचन में कोई 2 पर्सन हो रहा है तो वो टकराएंगे नहीं, मीन्स अगर कोई ड्रॉर खोल रहा है इधर से तो वो पीछे वाला अगर कुछ यूज करे, तो ट्राइंगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. Yes. Yes, very nice thought. And in detail, it will be told at our place also. Future में या practically आपको बताएगा. But yes, ma'am has said a very good thing that work is equally important. जब हम बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हो और इंडिया इज अ country where still joint family system is there. So many यस ladies or people working at the kitchen at the same time they are sharing the same spaces. So work triangle is equally important. So very well said, ma'am. Very good points you have given to our students. So basically, I'll be asking you now a very general question that uh, which will be related to my students. Many of the ओके parents always keep on asking me कि मैम अगर हमारा बच्चा इंटीरियर कर रहा है तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका ओके स्कोप क्या है. So I can first of all, obviously, I always say this, and I'll continue saying this. That you can see my guest, who is she, from where she is, what she was doing, and now what she. So all मेरे सारे आंसर्स तो उसी में आ जाते हैं कि now where नीता जैन is. So obviously scope क्या है वो तो आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिखा दी है. But now, ma'am, can you just elaborate it how this field is equally important and how we have many scopes in our field? यस। देखिए, जो इंटीरियर डिजाइनर जो फील्ड है ना, इसका स्कोप काफी अच्छा है। एंड खासकर जो गर्ल्स है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि गर्ल्स की सबसे पहली क्वेश्चन जो रहती है, क्योंकि वो ट्वेल्थ के बाद तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकती हैं, ठीक है। इनके लिए ऐसा रहता है ना कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है, अभी तो ठीक है थोड़ा लेट से कर रहे हैं शादी, अभी ट्रेंड चेंज हो गया, बट उनके लिए रहता है कि हमारी कब शादी कर देंगे घर वाले, हमें नहीं पता है। बहुत True. टाइप्स ऑफ के में होता है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये नॉलेजेबल मीन्स टैलेंट का बिजनेस है, ठीक है। मीन्स ये इसमें आपको टैलेंट की मस्ट है। तो ये टैलेंट आप शादी के बाद भी अपने ससुराल पर ले जा सकते हो। जैसे मैंने तो शादी के बाद ससुराल पे किया है, अगर मैं शादी से पहले की रहती तो वो डायरेक्ट में आके अपने स्टार्ट कर दी रहती, राइट। सो ये हाँ. जो है ना, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस है, जो आपके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए,
उसके बाद अपने पास थिंकिंग, मतलब कुछ डिफरेंट चीज लाने का भी, इनोवेशन जैसे मैंने बोला, तो ये सब चीजें अगर अपने में वो टैलेंट है तो वो अपन इंटीरियर डिजाइनिंग पर सोच सकते हैं। जैसे स्केचिंग स्किल्स अच्छी है हमारी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो हम इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सोच सकते हैं। और नहीं होगा तो आप जैसे इंस्टीट्यूट वाले हैं ही उनको डेवलप कराने के लिए। So राइट। sweet, सो so sweet of इसका you. स्कोप, या इसका स्कोप काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। एंड बस गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा गट्स रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने बताया कि मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल रही हूँ। सो पहले आके मुझे, क्योंकि सिटी का लेवल एंड होम टाउन का दोनों का डिफरेंस होता है, सो आके मुझे थोड़ा साइड पर स्टार्टिंग जाने में मुझे डर भी लगता था कि मैं अकेली लड़की कैसे जाऊंगी। ये हर एक लड़की के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। बट वो Yes, गट्स धीरे धीरे डेवलप हो गया, क्योंकि जब अपन फील्ड पर जाते हैं तो वहां पे हमें एजेंसीज पे भी डील करना पड़ता है, पूरे लेबर कास्ट होते हैं, एंड उसके बाद क्लाइंट से भी डील करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक गट्स हमारे अंदर डेवलप करना। एंड अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इंटीरियर में भी बहुत सारे स्कोप्स है, जैसे अपने कोई लाइट डिजाइनिंग के आर्टिस्ट बन गए, फिर इस टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइनिंग के आर्टिस्ट बन गए, फर्नीचर डिजाइनिंग हो गया, लूज yes, फर्नीचर्स हो गए, तो इंटीरियर में काफी सारा स्कोप है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक इंटीरियर डिजाइनर, अगर आपका दिल कहीं और पे भी, दिमाग कहीं और पे भी फोकस हो रहा है, तो आप इसमें कोई एक अलग स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। आजकल बड़े बड़े लाइटिंग डिजाइन करने वाले अलग से होते हैं। सो इसमें स्कोप काफी सारा है। yeah. So I hope every student, especially their parents, are satisfied with this answer, because as a very good point you have said again कि कुछ भी scope we can create in this field, as if के light specialist बन सकते हो, furniture specialist बन सकते हो, कोई भी एक field में you can create your own speciality. So there is no end of hope in this field, and yes, education is must. So स्कोप के as साथ साथ earlier also, नॉलेज, या स्कोप के yeah, साथ साथ नॉलेज भी, जैसे जैसे मैं भी अभी मेरे में अंदर नॉलेज डाल रही हूँ। मीन जो न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके साथ अपडेशन बहुत जरूरी है इंटीरियर डिजाइनर का। इसके लिए हमारे भी कॉलेज से हमें भेजा जाता था कि आप इस मटेरियल का फाइंड आउट करके आओ, क्योंकि प्ले तो हमें उस मटेरियल के साथ में करना है ना। अभी अभी लॉकडाउन में मुझे अभी एक नया फोन आया जिसमें वो वाटर प्रूफ पेंट बना रहे हैं। मीन्स अगर कभी आपके घर पे आग लगती है तो वो काफी 1 घंटे तक आपके जो अंदर की चीजें उसको खराब नहीं करेगी, मतलब फायर विकेट्स आते हैं तब तक। सो ऐसे ही उसको कैसे उसको यूज करना है, अपने लागू करना है, तो वो सब चीजें भी बहुत जरूरी है हमें देखना। okay, Krunal is commenting, good going, ma'am. So thank you for, from both of us. So, या okay, any questions from our audience? Anyone want to ask any question? Please do ask. Ma'am is there to answer your ये मिस्टर कुणाल जी का घर मैं बना रही हूँ। ही इज माई nicely. क्लाइंट। Okay, so nice. He's listening to you. So, sir, if you also have any damn question, you can ask related to interior designing. Neeta ma'am is there with us to answer for it. श्योर। Okay. Okay, okay, ma'am, we'll continue again. We were talking about the kitchen up till now. So, I would be now liking to sum up with this. So, kitchen में तो हमने कर लिया. So, what all different spaces we can include with the kitchen? Like, for example, kitchen from dining. In that way, people are merging it. Open kitchen, kitchen from living. You know, ओके। they are cooking and they can have a view in the living room also. So, what all different ideas you have in your mind that it can be played with the kitchen? देखिए Earlier, it किचन was में भी, yeah, किचन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। वो डिपेंड करता है कि किस क्लाइंट की कैसे रिचुअल्स है। जैसे अभी ओपन किचन का ट्रेंड काफी चल रहा है, बट बहुत सी फैमिलीज जो अभी भी है जो बोलती है कि नहीं, हमें क्लोज्ड किचन चाहिए। एंड कुछ होते हैं कि हमें वो उसी पर छोटा सा डाइनिंग भी साथ में दे दो तो हम वहीं पे ही खाएं। सो सबकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अलग अलग वेरिएट होती है। तो मुझे तो अभी ओपन किचन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब जो जमाना आ गया है वो बंद बंद वाला नहीं हो गया है, सबको खुला रहने का हो गया है। सो अब free कुछ हाइड from एंड सीक वाला everybody. कुछ नहीं है। यस। Yeah, सो see. मेरा जो पर्सनल है वो ओपन किचन का ही है। बट ठीक है, कोई कोई फैमिलीज में चलता है तो वो हमें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जाना पड़ता है।
Kunal is asking you cost कैसे कम की जाए. ओके, कॉस्ट कैसे कम की जाए? कॉस्ट देखिए, मेजरली जो कॉस्ट होता है ना, हम उसी पर ही चलते हैं। जो इंटीरियर डिजाइनर का काम है, वो सबसे पहले क्लाइंट का बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करता है कि उनको क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनका सबसे पहले बजटिंग ही होता है कि सर आपके इस कॉस्ट में ये चीज हो जाएगी। फिर वो उनका बजट और लिस्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वीनियर चूज किया, तो अगर उनके बजट में वीनियर नहीं आता तो हम लैमिनेट चूज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें होती है जो हम बेसिक जो होता है एक रूम में, वो तो होता है बेड बेड हो गया, फिर ड्रेसिंग हो गई, फिर वार्डरोब हो गया, ठीक है, टीवी यूनिट हो गया। ये जो बेसिक है ये तो देना ही पड़ता है। फिर अगर कोई क्लाइंट होता है कि नहीं मुझे इस रूम पे टीवी नहीं चाहिए, तो बजट अपने आप ही कट हो जाता है। बट वी प्रोवाइड देम पॉइंट्स, राइट? कि पॉइंट्स तो वी Kunal, प्रोवाइड एवरीथिंग कि इन फ्यूचर कभी कोई वो नहीं रहे। यस, कृणाल इज आस्किंग ओपन किचन में प्राइवेसी I नहीं think, रहती, लेडीज को yeah, डिस्टर्ब होता है। या he's ओपन asking that किचन, also. It's not यस, private. जो ओपन There किचन is है ना, यस, जो ओपन किचन है वो एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है yeah, एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। जो family. न्यूक्लियर फैमिली में होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वहां पे कोई प्राइवेसी वाली कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, अगर आप सरप्राइज कुछ कर रहे हैं अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो वो वो प्राइवेसी जाने वाली है। बाकी नहीं, that we can plan when the person is not in the house. यस, यस। एंड जहाँ पे न्यूक्लियर के बदले जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती है, तो वो अपने आप ही क्लाइंट बोल देते हैं कि नहीं हमें क्लोज्ड किचन चाहिए, हमें दिखता हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत आने जाने वाले होते हैं। और अभी तो न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ गेस्ट भी ऐसे हो गए हैं कि जो बार बार आना जाना नहीं करते हैं। प्राइवेसी मीन्स डिस्टर्बेंस। ओके। Yeah, this इट is इज disturbance in every way. यस। So can you just elaborate what kind of disturbance you are asking for? We can ask him, na, कि what kind of a question you are यस, asking, like privacy means disturbance, but what disturbance you are talking about, which will reply you for that. I think her wife too much annoy him. That's why he's asking. For open kitchen कैसे? or For open kitchen, obviously. okay, हमारे हाँ, अगर लिविंग आपके लिविंग रूम के सामने में किचन है, तो आप एक छोटा सा पार्टीशन, इवन स्लाइडर पार्टीशन भी आप कर सकते हो। जो स्लाइडर पार्टीशन कहीं पर हाइड हो जाए कोई पैनलिंग के अंदर, ठीक है। तो जब आपको प्राइवेसी रखनी है, तो वो आप उसको स्लाइड करके बाहर ले आइए। इवन मैंने एक दो क्लाइंट्स में किया हुआ है, क्लाइंट के घर पर उनको ये था कि मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। सो आई डिड कि उनको वो पार्टीशन आ जाता है, तो वो एक बार हाइड हो जाता है उन partial. दोनों का किचन। यस। एंड अगर उसके बाद उनके गेस्ट चले गए, तो आप उसको वापस खोल दीजिए, तो आप ओपन किचन का भी मजा ले सकते हैं और क्लोज किचन का भी मजा ले सकते हैं। Okay, so I hope he'll be satisfied with your answers because he is like a neighbors भी आ जाते हैं तो सर वो तो रहता ही है ओपन किचन वही लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें तो फॉर गट्स दैट होते हैं ही हैव टू टॉक विद मी पर्सनली। yes yes okay ma'am okay आई now एम we स्टिल will end डिजाइनिंग योर हाउस, सो कॉल मी पर्सनली फॉर दैट। true ये जस्ट अ जॉली discussion नेचर can ऑफ ना, तो be in place. यस, Yeah. So now I'll be testing your knowledge, or not like that, but a small question, a bundle of questions I'll be asking you. So ओके श्योर, as we were talking about so it's like coffee with Karan and all. I'm playing it since from last 2 3 sessions. I'm enjoying it a ओके, lot. There will be ओके। no hamper. There will be no coffee, no hamper, nothing. You can just come to our institute and you can have a visit over there. फिर से गई, या या Yeah. Just come to our institute and we'll be having our pending coffee over there after the question and answer Yes, I was session. just asking where is the coffee. You don't have to think a lot and you have to give the answers quickly. Okay. So any two materials can be used on the top of the kitchen or a countertop. Um, Granite, the very first option, and second is the G5. It's a white quartz.
So it is a maintenance. Okay, nice. Okay, what is the basic size of a window we can provide, in front of the stove? It's tough. 5 feet is enough. Yeah, yeah. 5 Many feet. more people ask questions with you. Yeah, sir, you can message us with your questions and we'll be asking her, and we'll be calling her again for clarifying your questions. Mhm. Okay, my next Yeah. question is how paint color option on the walls or the ceilings or the furniture anywhere plays a role in the kitchen? In kitchen. Yeah. We think ना Okay. in a room this color, that color, baby color है, pink girl है तो pink color. तो kitchen में how Okay. paint plays an important role. ओके सी जैसे किचन्स होते हैं ना, तो किचन पे जैसा मैं सबको पता है कि अपने ग्लॉसी चीज लगाते हैं क्योंकि वहां पे ऑयली चीजें होती हैं. सो वाइट यू कैन गो विथ वाइट ऑल्सो, क्योंकि वो ग्लॉसी रहते हैं तो उसपे कोई तरीके का स्टिक नहीं होता है, आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं. एंड फॉर किचन लाइट ग्रे कलर यू कैन गो फॉर लाइट ग्रे कलर, एंड इट्स माई फेवरेट कलर बिकॉज द ग्रे इज द कलर विच गोज विथ एवरी कलर. मीन्स इट्स अ मस्टर्ड Yeah, और ब्लू. So gray color is a very common and it can be go with your house. So I will prefer that in kitchen also you can use a gray color. yeah. Any And two in other ceiling also, centers? I want to add something. If you are designing a kitchen, so your ceiling should be also not so much level up and down. It would be a plane Yeah, so that the cleaning should be very easily. I whenever yeah, I design any house now, I take care of the cleaning also, because the duty of interior design is not only to design the house and go away, right? The person has to live in the house and he has to clean also. So I avoid so many jalis and छोटे छोटे, that small so small because the crucial dust, designs या which are डस्ट बहुत जल्दी बैठते हैं उन पर, और फिर वो कहीं ना कहीं यार यार रोज क्लीन ही करते रहो, वैसा नहीं. मीन्स और वो क्लाइंट clean एक के हैप्पी टाइम पे होना वो चाहिए. आपको याद करेंगे. हर यस. जितने साल तक वो पाएंगे उतने साल वो आपको याद करेंगे कि यार वो कैसा याद डिजाइन करें. करते हैं. राइट. No? Okay, I was asking you any two different centers except sink center, stove center and refrigerator center. फिर इनके से अलावा रिपीट. दूसरे दो, yeah, two different centers in the kitchen except sink center, stove center and ओके. refrigerator center. इनके अलावा दूसरे ओके. दो centers और kitchen में. प्रिपरेशन जोन एंड स्टोरेज एरिया. प्रिपरेशन Yeah, जोन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड स्टोरेज तो वो उसकी केयर वो बहुत ज्यादा तो जरूरी होती है. उसमें बहुत जल्दी जो सूरत का एटमॉस्फेयर है, मैं बोल सकती हूँ उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं. तो उसके लिए yes. बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि स्टोर रूम को बंद रखो बंद रखो. आई थिंक हल्की सी उस पर भी एयर वेंटिलेशन जो होता है ना, कि गेट को थोड़ा अपने को ओपन रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम तक कोई भी चीज क्लोज रहती है तो उसमें कीड़े जल्दी पड़ते हैं. सो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि स्टोर रूम को ऐसा अपना एक माइंडसेट रहता है कि स्टोर रूम को बंद रखे, बट आप ओपन रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा. Actually, इधर का climate ऐसा, even I have faced this and even I am fortunate my place and home also open storage. Otherwise, Rajasthan में we have a closed storage, but यस. here we एंड have an राजस्थान का open जो एटमॉस्फेयर है storage. ना, राजस्थान में टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो वो अपने आप ही जो हीटिंग रहता है वो रहता है, और यहाँ जो सूरत का है वो काफी नमी रहता है, तो कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं. सो एक लेडीज रहते हैं इंटीरियर, तो इसका फायदा क्लाइंट उठा सकते हैं. Yeah, so thank you so much. Here we end up with the session now, and thank you for giving us your valuable time and so many good questions. I know today's knowledge we share to our viewers. वो लोग बहुत खुश हुए होंगे आज मेरे students. I think please reply. You can leave your comments that you enjoyed your session or not. What next you want? We can continue next time also, right? If या. Nita Jain is with us again. If anyone want to ask anything, then you can. Yeah, I got connected again because it's an hour, and I think there is a limit with Insta also, like Zoom. It ended up naturally, अपने आप ही वो end हो गया पूरा session. So yeah, I would like to thank Neeta Jain, honors at Harmannath Interiors,
So I would like to thank her for giving her valuable time to us, and we had a very good session over good discussion over kitchen area at residential or commercial unit, mainly at residential. So thank you, Neeta Jain. I'm so sorry, I don't like, it's a rule of, I think, Insta, it gets disconnected within an hour. So we'll be meeting soon. Hope we'll see, I'll see you soon at VID, Virtual Institute of Design. And we thank you so much to join us with us. So here I'll be ending up this session today, and on Thursday I'll be there live with Richa Sharma. She is a well-known fashion designer all the way from Kathmandu, Nepal. So be there if you want to get knowledge related to illustration. She is a fashion illustrator. She was a professor. She is a fashion designer right now in the market. So for next session, just catch us on Thursday 5 p.m. So bye bye, take care, stay safe.